Once again, I welcome all these dignitaries with me in this panel discussion. The topic of the panel discussion is Women Empowerment and Role of Society, a Reality Check. So, esteemed dignitaries, first of all, I extend again a warm welcome, and we're going to begin this discussion. As we all know, since the olden times, and we will only talk about in Indian context. I would like to ask whether English will be comfortable or Hindi will be comfortable. No problem. You can also give answer in your favorite language. No problem. Hello, hello. A little bit more volume. Hello, 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 hello. Okay. So we will talk in Indian context. Like in olden times, women had a very good position. And they were worshipped also. It is also written in Vedas that Yatra Naryastu Pujyate Ramante Tatra Devta. जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं. कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है. जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी. लेकिन अगर हम दूसरी साइड बात करें, क्राइम अगेंस्ट विमेन, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, यू वुड नॉट वंडर टू नो. अगर हम अपनी लोकसभा की बात करें, 550 में से 60-70 के आसपास विमेन रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश में. और अगर लोकसभा की बात करें, आउट ऑफ 250 there are only 20 फीमेल मेंबर्स. स्पोर्ट्स में लेडीज बहुत अच्छा कर रही है, बट वहां भी कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि फिर मन करता है बेटियों को स्पोर्ट्स में ना भेजें. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू मैडम हरकमलजीत कौर इज दैट आई वांट टू नो योर ओपिनियन. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्टेट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इन इंडिया? First chance to speak on the topic. India. Sir has started by saying that in ancient time, women were worshipped. Even today, we worship Devis, Jai Mata Di. But are we really worshipping them from our core of our heart? नहीं, ऐसा नहीं है. When I reached, I was the first person reaching here. I will start from this point. In India, my parents being educated, they taught me the punctuality. Okay, I learned that. They empowered me by giving me education. They never asked me what I want to do. They said, "Bachche, it's okay, your wish. We don't want to impose anything on you." It was my own, my parents. But if I saw all around, it is not like that. There are many things which are in books only, in the documents only. Sir gave me one point, sports also. Our girls are playing in sports, but somewhere. Now, a few days back, T20 World Cup of Women was going on. How many of you watched that? One lady only. 2. One male person. 2. So this is called women empowerment in India. We feel they are not that strong. They are not going to entertain us in that way. The men are playing in the grounds. क्या ऐसा है? एक स्त्री जो जन्म देती है, सारे परिवार को संभालती है, सुबह से लेकर रात तक वो पैरों पे खड़ी रहती है, घर के एक एक सदस्य का ध्यान रखती है. इसने खाना खाया कि नहीं, इसकी तबीयत ठीक है, ये काम समय पे हो गया. फिर भी हमें इस चीज की जरूरत है कि स्त्री सशक्तिकरण किया जाए. क्यों? We are already empowered. Single mothers are the examples. अगर यही काम हम मर्दों को
बोल दें कि अकेले आपने सुबह से लेके शाम तक घर संभालना है, तो एक दिन तो बड़े रहेंगे, हम करके दिखा देंगे। 2 दिन में उनको याद आ जाएगी दादी नानी सारी कि क्या है क्या नहीं है। हिंदुस्तान में स्त्रियां पूजी जाती है मंदिरों में, घरों में नहीं पूजी जाती। घरों के हालात वो नहीं है। कंजकों की पूजा होती है, लेकिन 2-2, 3-3 साल की कंजकों के साथ क्या होता है वो सभी न्यूज़पेपर्स में होता है। हम पढ़ते हैं, शर्मिंदा होते हैं। और ये they are not strangers. Many of them are family members, very close family members, to those who are doing all these crimes against women. If you are feeling being a woman that you are safe in your own house, I don't think so. ऐसा नहीं. At workplace, if you are capable enough to keep your self-respect, only then you are safe. Otherwise, no. It is your own self-respect. For your own self-respect, you are working. For me, women are already empowered if they feel so. So I am not going to take much of your time because I need some extra time also to think more points. So thank you, sir. Very well explained the actual condition of the Indian household as well as the Indian society by Madam Harkamaljeet Kaur. My next question is to Mrs. Sunita. Madam, being a lady and you are very senior us also, you have played your part in the society, you have been in the society for long. एजुकेशनिस्ट भी आपने काम किया है, आप सोसाइटी से जुड़ी हुई। मैं आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन जो बिल्कुल मुझे पता है जब आप बोलेंगी आप वो बोलेंगी जो आपने इतने सालों में देखा है और महसूस किया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जिस सोसाइटी में आप घूमी हैं, बिजरी हैं, आपने ये सारी जिंदगी बिताई है, उस सोसाइटी ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या अपना रोल प्ले किया है? थैंक यू वेरी मच सर। मैं कंफर्टेबल होंगी हिंदी में बिकॉज आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बेटर देन। तो सबसे पहले तो औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाब की, औरत मोहताज नहीं है किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात है इस कायनात की। तो ये जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि सोसाइटी तो जैसे कमल जी ने बोला, सोसाइटी तो नहीं इसको एक्सेप्ट कर रही वुमेन एम्पावरमेंट को। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। फॉर 3 years आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ भारत विकास परिषद मलिकपुरला ब्रांच। Then I better felt it कि औरत की लीड को उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वही मैन ओरिएंटेड फैमिली है हमारी सोसाइटी। तो उनको लगता है कि हम इनके नीचे कैसे काम करें। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आई मुझे, लेकिन वही एक नारी अगर चाहे अपनी एम्पावरमेंट को शो करना तो उस काम को बहुत बेटर तरीके से कर सकती है। ये औरत खुद ही अपने आप को बनाए तो बनेगी, सोसाइटी को तो इतना मंजूर नहीं है। हम जॉब करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेडीज करती हैं। हम घर आते हैं बिना शूज उतारे, बिना ड्रेस चेंज किए हम किचन में घुस जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी 40 years जॉब में रही हूँ। तो यही हम करते रहे हैं कि कपड़े भी नहीं चेंज करने, एप्रन डाला, बिना शूज चेंज किए सीधा किचन में। मेल क्यों नहीं साथ देते? तो ये सोसाइटी को ही मैं इसके लिए कसूरवार बोलूँगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर एम्पावरमेंट देनी है तो फिर दिल से दी जाए। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन असल में देखा जाए तो कोई घर औरत के बिना घर नहीं होता।
तो मैं चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ये जागरूकता आए और औरत को वो स्थान मिले जो मिलना चाहिए। थैंक यू। मैडम सुनीता, आपने बाकी अपना जो इतने सालों का तजुर्बा है वो बयान किया। और हम समझते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन औरत के बिना भी कोई घर नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली। जाहिर सी बात है, हम जितने मर्जी दावे कर लें, बड़े बड़े अवार्ड्स स्टैब्लिश कर लें, रिकग्निशन दे दें, लेकिन ये चीजें कुछ दिनों तक ही सीमित रह जाती है। अगर हमें एम्पावरमेंट की शुरुआत करनी है तो वो हमारे घर से करनी है। हर घर में अगर विमेन एम्पावर्ड है तो सोसाइटी में विमेन एम्पावर्ड है, और सोसाइटी में एम्पावर्ड है तो पूरे देश में एम्पावर्ड है, और पूरे देश में एम्पावर्ड है पूरी दुनिया में एम्पावर्ड है। तो शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि वो नहीं होता। घर में ही, चाहे वो अगर एक डिप्टी कमिश्नर की औरत है तो उसे भी घर आके अपने बच्चे को देखना ही पड़ेगा। मतलब वो ये बैठ के संतुष्ट नहीं हो सकती कि अगर मेरे पति घर पहले आ जाएंगे तो शायद बच्चा खाना खा ले। कोई जरूरी खा भी सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे पापा भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि लेडी चाहे किसी भी ऑफिस में काम करे, किसी भी पोजीशन पे, उसे घर देखना ही पड़ता है। और यहीं से शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाती है उसके दबने की या दबाए जाने की। क्योंकि भारत में एक सर्वे में ये पाया गया है कि नौकरी छोड़ने वाली औरतें, उनके जो नौकरी छोड़ने के जो रीजन है वो 100% तक उनके घर से, उनके परिवार से, चाहे वो चाइल्ड बर्थ है तो उसे ही देना। हस्बैंड ने बच्चा पैदा नहीं करता, वो वाइफ नहीं करती। घर पे कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई है कि किसी को केयर की जरूरत है तो हस्बैंड कभी की छुट्टी भी नहीं लेगा, शायद नौकरी छोड़ना तो दूर की बात है, और छुट्टी भी ले लेगी या फिर नौकरी ही छोड़ देगी। और दूसरे सोशल कॉजेज हो सकते हैं, आने जाने में दिक्कत है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आमतौर पे घर पे बोल दिया जाता है कि आप नौकरी छोड़ दो, जरूरत नहीं जाएगी। तो हो जाता है, एम्पावरमेंट हो जाता है अपने से, आप नौकरी छोड़ दो, आपको कल से जाने की जरूरत नहीं। और ये बीइंग प्रिंसिपल मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली, तो मैंने पिछले 17 सालों में एज अ प्रिंसिपल देखा है बहुत सारी लेडीज ने जॉब छोड़ दी। सर घर पे ये हो गया, घर पे वो हो गया, हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, फैमिली अलाउ नहीं करते। ठीक है मैडम, चाहिए, हम समझते हैं इन चीज़ों को। तो मैडम सुनीता ने बहुत अच्छे अपने विचार यहाँ दिए। नेक्स्ट माय कॉल इज टू मैडम सतप्रीत कौर जी। मैडम आपसे मेरा सवाल ये है, देखिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन, भारत की भी लगभग आधी पॉपुलेशन, थोड़ा सा फर्क है, औरतें हैं, फीमेल। तो आधी आबादी है, तो फिर आधी आबादी का एम्पावरमेंट क्यों चाहिए हमें? बाकी आधी इतनी ज्यादा पावरफुल है, कहां से इसकी नीड अराइज हुई? आपको क्या लगता है अगर आप इसकी जड़ में जाएं, बीइंग एजुकेशनिस्ट, तो व्हाई डू वीमेन नीड एम्पावरमेंट? Hello everyone. Thank you so for asking the question. Sir, I think जो आपने क्वेश्चन अभी पूछा है, ये जो 50% है, तो कहाँ से इसकी नीड शुरू हुई है? जैसे हम अगर एशियन टाइम की बात करें कि जो काम पे लोग जाते थे, सिर्फ जेंट्स भी जाते थे, तो लेडीज थी वो घर संभालती थी। लेकिन जब से लेडीज ने काम करना शुरू किया है, तब से लगता है कि लेडीज घर संभालेंगी कि बाहर का संभालेंगी। और कहीं ना कहीं ये जो मैन मेड सोसाइटी है, तो उससे लगता है कि ये जो वीमेन है वो ज़्यादा तरक्की कर जाएंगी, हमसे आगे निकल जाएंगी, हमारी पहचान कम हो जाएगी। तो ये चीज़ जो लगती है कि इसलिए ये चीज़ को लगता है कि जो यहाँ से इस चीज़ के लिए ज़रूरत महसूस हुई। और अगर मैं कहती हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो, तो घर से ही होती है। द रूम इज नॉट बेड इन अ डे। हम सोसाइटी की बात करते हैं, पहले अपने को एक्सेप्ट करें इस चीज़ के लिए। और उस चीज़ के लिए मुझे लगता है लेडीज़ को, वीमेन को खुद अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। देखो, अगर हम किसी को अच्छे लगते हैं, हर हालत में अच्छे लगने चाहिए। कमियों के साथ भी एक्सेप्ट करें हमें, सिर्फ खूबियों के साथ नहीं। और कमियां और खूबियां सभी में होती हैं। अगर हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स, हमें बच्चे हमें ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर एनी वुमेन टू ग्रो। तो वो करते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगी। मेरी फैमिली ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे मैं हूँ। तो अपने जब तक हम क्या चाहते हैं वो उनके सामने नहीं रखेंगे, हाउ वी कैन जज के वो हमसे क्या चाहते हैं। जब तक सर हम अपने डिजायर्स नहीं बताएंगे, हम कैसे समझें कि सामने वाला हमें समझ रहा है, जब तक हम बोल के नहीं बताएंगे। बीइंग अ विमेन हम समझ लेते हैं कि हाँ जिसको क्या चाहिए, मेरे फैमिली मेंबर को क्या चाहिए, हमें कौन कैसे समझेगा। अगर कोई बिना कहे नहीं समझता तो कोई समझा दो। दिस इज थैंक यू। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई बिना कहे नहीं समझता वो समझा दो। और ये मेरे ख्याल से ये गुरु मंत्र भी हो सकता है। लेडीज अगर इस चीज को अडॉप्ट करती हैं अपनी लाइफ में तो ये उनकी एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है कि जो नहीं समझता उसको समझा दो। समझाने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई करनी है, समझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हर पर्सनैलिटी पे, लेकिन एक अच्छा मेथड हो सकता है। माय नेक्स्ट कॉल इज टू मैडम जसप्रीत कौर जी, प्रिंसिपल सीता ग्रामर स्कूल। मैडम, देखा गया कि रुकावटें ना घर से शुरू हो जाती है ना। भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, अब भाई बहन को लगता है कि मेरा भाई अब इतना नहीं रहा जितना मेरा पहले था। माँ को लगता है कि मेरा बेटा अब उतना मेरा बेटा नहीं रहा जितना पहले था, बढ़ गया। और बाकी घर के मेंबर्स को भी, स्पेशली मैं बात करूंगा फीमेल मेंबर्स को। मेरा सवाल ये है कि विमेन क्रिएट ऑब्स्टेकल्स फॉर विमेन। औरतें औरतों के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक रोड़ा है, रास्ते का पत्थर है विमेन एम्पावरमेंट के। ऑडियंस, आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि घर की लेडीज ही घर की लेडीज को दबाने की कोशिश करती हैं, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हैं, लगाम लगाने की कोशिश करती हैं। तो ये भी एक रुकावट है, ये भी एक जरिया है विमेन एम्पावरमेंट के रास्ते में बाधा डालने का। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपके विचार जानना चाहूंगा मैं। Thank you, sir. Thank you very much for the question, and thank you very much for calling me on the stage. Though I said no, but thank you. I'm happy you are giving me a chance. So the question with you have raised, this is a big topic of debate, because we the women, if we just introspect, so naturally this is there कि औरत ही औरत दी सब तो बड़ी दुश्मन है, because we don't accept easily. So when we talk about women empowerment, as sir has said कि there is jealous कि भी कि जैसे सास को लगता है भी बेटा अब मेरी नहीं सुनता जितनी पहले सुनता था। Even कि दो our daughters are get married, we keep following up them also भी क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। So being women, I think if we will start from our home, the society will change automatically. We have to teach our daughters कि what are your rights and what are your responsibilities when you are going in laws of home. And same way at our home also. So we need to understand the emotions, feelings of our daughter-in-laws and our even our family members, sons, ki what they feel about them. आप पैनल डिस्कशन में ऊपर जाओ, आइए प्लीज। मैडम परमिंदर कौर। So जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है विमेन के साथ, वो तो देखो शुरू से है। दैट्स व्हाई गुरु नानक देव जी said सोके मंदा आकी है जित जमै राजा। It means that time also society was same, but now as women has got education, we are educated and we are moving forward
we even more empowered than men. We can change everything. If a woman is educated in the house, she can change everything. Full family is affected by the educated women's means her thinking, her behavior, her teachings. It affects the family. So we women need to change, please. So I'm very happy कि sir has given me this question कि औरत की दुश्मन ना होगी. We should teach our children कि नहीं, हर बंदे की अपनी फीलिंग्स होती हैं, राइट होते हैं और हाथ में हाथ मिला के ही हमें आगे बढ़ना है. And by grace of God, I have same family, many, even my professional family also. These are very common things which we used to talk among ourselves. So that is, there is a school for home problems also. So I am very much, because when someone is relaxed, mind is set for working, then only. So I am very personal with all my colleagues and we used to discuss. So ladies, we need to change. Even the men who are sitting here, we need to change. We have to change our attitudes towards our ladies, help them in households, same responsibility. If they can just clean the utensils, why can't you? If they can make chapatis, why can't you? Because when we go abroad, it goes there. Our students, they, as now trend of the society, they are going there and they are doing same. But अगर ये हमारी सास अगर बेटे को करता देख ले तो उसको जलन होती है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे. So we need to change for that. Thank you, sir. Madam Jasveer Kaur is very vocal, feminist, लेकिन बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने और बड़ी सटीक बातें हैं. मुझे लगता है आप सब ऑडियंस एग्री करेंगे मैडम से. I need your response, please. Yes. So thank you, Madam Jasveer Kaur ji, for your views. Now my next call is to Dr. Jasveer Kaur. Dr. Saab, you've been in society as a doctor and you keep on meeting your clients, patients, male and female, being a dentist, so both categories you come across. My question to you is, after seeing the society through your patients, whatever experience you have, see, it's been 75 years. India boasts of Amrit Kaal. अभी इन दिनों अमृत काल चल रहा है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री फरमाते हैं आजादी का अमृत काल. ये 75 साल हो गए हैं, तो ये अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जाता है. क्या इस अमृत की मिठास उतनी है? क्योंकि सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, देश की जब हम बात करते हैं, तो दोनों जेंडर इक्वल हैं. प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर बांट दिए, फ्री कर दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखा हमने कि वो गैस सिलेंडर उनकी पहुंच से दूर हो गया, उन्होंने फिर छोड़ दिए. बांट दिए उनको, लेकिन उसका रेट इतना कर दिया कि अब उनकी वो पहुंच से बाहर है. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकारें, मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि सरकारें हमेशा मूर्ख बनाती हैं, देती वेती कुछ नहीं है, और अगर देती भी है तो वो एक चुटकी और लेती है पूरे मुट्ठी भर बदले. जैसे ये सिलेंडर का था, आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, उज्ज्वला योजना. प्रधानमंत्री जी की फोटो, एक महिला की फोटो. वो महिला किसी गांव की महिला थी, वो बेचारी सी लगती है उस फोटो में, इसीलिए उसे लिया गया. और साथ में एक सिलेंडर की फोटो. वो पूरे देश में होर्डिंग लगे, सिलेंडर बांटे गए. लेकिन तब और अब के सिलेंडर को देखें तो 2.5-3 साल में वो 500 रुपए का सिलेंडर और 1150 रुपए का सिलेंडर है, जो कि एक आम भारतीय महिला की गुंजाइश थी. वो 1150 का सिलेंडर ले, वो वापस चूल्हे पे आ गई, वो लकड़ियां जला रही है, चूल्हे पे रोटी बना रही है. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 75 ईयर्स हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, 75 सालों में जबरदस्त सरकारें भी रही हैं. इस सब के बावजूद लोगों से जो आपकी बातचीत हुई है, आप उसके बेस पे अपना एक विश्लेषण यहाँ दीजिए कि कहाँ कमी रह गई, क्यों औरतें अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाई जिसपे मर्द सदियों पहले ही पहुंच गए थे. ये मेरा सवाल. थोड़ा माइक पास रखना पड़ेगा. First of all, I'd like to thank Principal for inviting me on this prestigious stage with such highly qualified teachers and everybody. So, what I've seen is that
them. They are extremely talented, but they lack confidence. They lack funds. Even if they want to build a business, they want to study further, they don't have funds, they don't know where to approach, what career options are there. In schools, I feel that girls are not educated, what career options can be given to them. They only know about boutiques and parlors, being a doctor or engineer, that's it. Apart from there are so many other career options for girls and no career counselors for girls. Whatever counseling you can give them, there are so many government schemes, how to avail them. There are for girl child, there are so many schemes, you can get funds to start your business, and there's so many schemes that government has come up with, but we don't know how to use them. Because there's no guidance. We don't educate the, if you want to start a business, from where to take the money, which scheme you can apply on, what are your career options. We don't guide them. Neither the parents know nor the child. So they don't know how to start a business, start a career, what career to choose. They're not educated nowadays. Plus, one more thing I feel in schools, there is no self-defense. In our schools, we were taught karate. But in none of the schools I see karate classes, how to teach girls self-defense, where should you build your finance from. Finance counseling is also not. This is what I do. Right, Dr. Rasleen beautifully narrated the issues which the girls are facing at the societal level. My next call is to our very recent guest, Dr. Parminder Kaur. She is a principal from Bhatinda. Maybe that's why she got late in reaching, because we are sitting in this remote village. This is away from cities, so I can understand. Madam, you are an educational leader. So my question to you is very simple. As a leader, if you are to make changes in the system, जो भी system आज है, if you are given that authority, you are given that liberty to make changes in the system, what changes in the existing system would you like to bring so that we can bring gender parity? कि हमारा समाज जेंडर को लेके इक्वल हो जाए. आज जो तकरीब है वो एक जेंडर की तरफ झुकी हुई है, दूसरा जेंडर काफी ऊपर है, यानी कि वो माना जाता है कि वो वीकर जेंडर है, क्योंकि तकड़ी बराबर नहीं, तराजू बराबर नहीं. तो आप ऐसे कौन से चेंजेस लाना चाहेंगी if you are given the power and authority so that our society becomes a level playing field for both the genders? Good morning, everyone. First of all, I apologize for being late because I came directly from Bhatinda. So your question is how to bring the changes in the society, right? If you would be asking me, because being a lady as well as a mother, it becomes the duty of a mother to educate first of all her children, like either a male or a female, a son or a daughter, equally. Like as ma'am told right now, Jasveer. She told we should educate them. Like this is your duty as well and her duty as well. Like a son's duty, both of their duties are equal. Right? It becomes the duty of a mother first. Because mother is known as the first educator, first teacher of a child. So from there only the duty of the mother starts. But yes, because if we talk about a male is a production of a female, right? So all the duties, they are on the shoulder of a female only. So a female has to educate, first of all at her home as well. Then in school, as being principal, I also keep on telling, because my school is also there in the remote area only, but yes, in the rural area. And most of the parents are uneducated. So they come to me and Mom, she doesn't listen, she speaks like this. When I ask them, then I come to know there is a discrimination which is done at their homes. As ma'am told, they don't know what are the rights, they don't know anything. So we have to give them the education
in that way. These are the rights. It's not rights. They should be treated equally. Where like this word right comes from, I don't know. I can't understand. And like if you want, as we nowadays also, if we talk about like a girl and boy, like when they get married and then problem is there, girl is more educated. I hope like nowadays we will be seeing in this hall as well, most of the ladies are sitting. You can check the ratio. Maybe because of this function, but yes, we can check the ratio that more of the ladies are sitting. Everywhere, in every field, the ladies are there. And it is expected from a girl that she'll clear the IELTS, right? And then a man, a male, then would be getting married to that, and she'll be doing plus 2 only, right? And then a girl goes abroad, and it is her duty to take care of that boy when he'll be coming, because spouse visa that would be there, and then she'll be going abroad. So now, like, why is it expected from a girl only to be educated? Why a boy cannot be educated? Being principal, it is our duty to tell them in the schools as well. At our homes, I'm telling, first of all, it is the duty of the parents, right? I don't know how many parents are sitting here. The parents are there. Are they there? Even teachers are Parents also there. बैठे हैं. हाँ, वैसे parents means if suppose teachers are also there, they are also the parents only. So it becomes their duty to tell like a boy should also get education. It's not like okay, the girl is educated and then is doing IELTS. A boy can also do it. Why can't we expect from a boy okay, he won't be doing it? And then suppose I'm telling a girl goes abroad and then there she is already very much educated. And then she gets the job also there. Then it is expected now it is her duty. Like the boy would be settled by a girl only. Goes abroad. So there she goes and then she comes like she sees each and everything and then she feels like why is I'll have to marry that boy who is totally uneducated, right? So when she gets the exposure, because here we don't get that kind of exposure. There she gets that kind of exposure and then she feels like, oh, I'm married to that kind of a boy who is totally illiterate, not illiterate totally, but still only +2. So why should I like lost all those opportunities which I'm getting here? So she denies sometime, right? Then again she is blamed for that. We have spent so much on her. I say 25 or to 30 lakh, and now she has gone abroad. Now our son is here. But now she is denying that I won't be marrying that. Why? So it is like the changes are coming. We'll have to face because the girls are more educated nowadays. Because from very beginning the responsibilities are on the shoulder of the girls only. So we have to bring the changes in the society. Like we have to tell them that you both are equal. Means why again? It is why we have to tell them. I don't know only, but still because we have to bring a change in the society. So now we have to tell them that girl and a boy is equal, and it is the duty of each and every mother who is sitting there to tell them. Yes, this is, as ma'am told, chapatis, to make chapatis. Yes, you can make. Why is it so? Why is it expected from a girl only to make it? Why like laundry and then washing utensils, each and everything is the duty of a girl? I don't know. Because she is also going, right? Like I have come here. It took me around 3 hours, I think so, from there. And then like I'll be going back, I'll be going to my duty as well. Then by the time I'll be going back, it would be say 5 to 6. And then if somebody would be expecting, okay, you have come now, start the household work. It becomes difficult, right? So we feel difficult. So it is again duty of us only. Chalo, whatsoever has gone is gone. We can't change that.
But now the next generation, whatsoever will be coming, it's our responsibility to bring about the changes in them. And another thing I just want to say, sir, on like educationists, it's a big responsibility. Because what am I thinking this year? That we have told the students, okay, from the school as ma'am said, okay, self-defense and each and everything, we should teach the girls only. The boys also. Same. Although they are like stronger by default, right? By default only, but still, like these becomes duties to educate them. And another thing is that we have told them only, okay, be a doctor. In the essays only we write, okay, I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a lawyer, whatsoever. We have never ever told them, okay, you should be a skilled worker as well. Never ever told them. Anything. Means now, from this year onward, I am just sharing it with you, that I have thought of that whosoever like is educated, like from my school, like say has done +2 from my school or say 10, and they are well settled because students are going, right? And they are doing each and everything over there abroad. They are doing each and everything. And here, nobody is doing. Our Punjabi people, they think, especially the Jet families, if they are sitting Kaka, means we are like Kaka ji kind of. We being that, we won't be doing because I belong to that Sikh family. So I know, like in our families, if a male is there, he is not supposed to do anything. I need Jameen on the so just enjoy your life. So here, like the thing is, if I suppose a parent comes to me for admission, I say like, what do you do? What do they say? Ma'am, first of all, so they feel shy. While telling, madam, I'm a farmer. Okay, मैं तो कुछ नहीं करता जी, I'm a फिर then I say, कुछ भी नहीं means how is it possible? You have come for admission. कुछ तो करते होंगे for livelihood. Then they say, ma'am, I'm a farmer. खेती बाड़ी जी कर लेने हैं. खेती बाड़ी is a small thing. Is it means you don't have to do anything? It's a big task you have to do. Means you should first of all be proud of yourself whatsoever I'm doing. So it becomes the duty of an educationist to tell like this person also deserves like that kind of honor, right? A person who is doing this like farming as well, he deserves the honor. We should invite those kind of people, students to our school who are doing the farming. Right? We should, whosoever is doing, whatsoever, like either the girls, they have settled that kind of, say, their own business, any kind of a boy or a girl, I'm telling, any kind of their own venture, any kind, I'm telling. Suppose I asked one of the person, he was having like his puncture wali shop, right? So we can like, he is also earning. So we should invite that kind of a person, yeah, I'm earning good. Like, it's not his earning is not good. In our families, we have say 20 acres of land. We kille zameen hundi hai sadi. Sade, we have two cars at our homes. Aren't those? Negatively means I think so because this school is also located in the outer skirts. And whosoever the parents come here, I wanted the parents would have sitting here. Parents are sitting. All these ladies in front, their parents. But Punjabi च भी मेरे ख्याल से आपकी you understand English च समझ आती है? Yes, So अब पंजाबी बोलेंगे तो बेटर है वैसे इंग्लिश अच्छा मैं ये गल कहनी कि suppose ਤੁਸੀਂ like आने हुए थे तो कारा ते ही आने होंगे ना कि नहीं? And then साडी इतने ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ कि like we have एक किले च ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ isn't it? ਹੁੰਦੇ ਆ so when we come here like we then again we say ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਨੇ we ourselves are condemning ourselves ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੁਦ condemn ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ
कम हियर ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਆਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ that ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ that's why we are sending our children abroad ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ from the very beginning we are making up their mind you have to go abroad only ਫਿਰ ਉਹੀ कि लड़की जाओगी पढ़ लिख के एंड देन लड़के ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ keep on creeping only for whole of our life so I want कि sir being educationist we should invite everyone whosoever has start up with their venture whatsoever they should be invited to the school and should be honored. It's not only the doctor, not only the engineer, because we have to bring out the change in this society, and this can be done only by educating in this way and giving the honors to each and everyone, even the mothers also, who are doing like say embroidery work or say they have like any kind of thing, their own venture. So they should be invited. So I think so we can bring out the change in the society and can change. Thank you so much. Indeed, very well explained by Madam Parminder Kaur. और हाज़रीन दुनिया में ना मतलब हर काम के पैसे मिलते हैं, है ना? ये दुनिया इकोनॉमी पे चलती है, बिजनेस पे चलती है. हर काम के पैसे मिलते हैं. एक ही काम की आज तक किसी ने कोई कीमत नहीं लगाई है, और वो काम आपको पता ही नहीं. वो है घर संभालना. पहले दिन से आज तक दुनिया का सबसे मुफ्त का काम बना हुआ है, और शायद यही वजह है कि उसकी कद्र और कीमत थोड़ी सी कम. अरे हम होटल में जाते हैं, एक फैमिली 4 जनों की फैमिली खाना खाने जाती है, वहां हम 2-2.5 हजार रुपए शेल आउट करते हैं. आते हुए हम वेटर को टिप भी देते हैं 100-200 रुपए. 2,500-3 हजार में एक फैमिली खाना खा के आती है एक शाम को. वही खाना आपको 29 दिन घर पे 3 टाइम मिलता है. शायद उससे भी बेहतर खाना मिलता है, लेकिन हमें उसकी कद्र और कीमत नहीं पता होती. हम घर पे मेड रखते हैं सिर्फ सफाई के लिए या यूटेंसिल्स के लिए, वो 2-2.5 हजार रुपए मंथली में काम करती है. लेकिन हमारी अपनी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां, है ना, हमारी बेटियां वही काम करती है, वही काम करती है, लेकिन उनकी कीमत क्या है? उनकी कीमत यह है कि कभी गुस्सा आए तो गुस्सा पे निकाल दो. उनको उनके अधिकारों से, पंजाबी में कहते हैं वांझा कर दो, वंचित कर दो, डिप्राइव कर दो. तो एजुकेशन अपने आप में एक बड़ा टूल हो सकता है. और यही मेरा लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन है आप सबसे. 1-1 मिनट के अंदर आपने जवाब देने हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, सो दैट कि इस डिस्कशन का हम एक कंक्लूजन हासिल करें, देखें कि क्या ऐसा हो सकता है. तो मैडम जसवीर से शुरू करेंगे कि वाकई में ना मतलब आपने 1 मिनट के अंदर कुछ ऐसा बताना है कि अगर ये हो जाएगा तो शायद समाज सही हो जाएगा, सोसाइटी सही हो जाएगी. और विमेन एम्पावरमेंट, मैंने शुरू में भी कहा था कि विमेन एम्पावरमेंट क्यों चाहिए. विमेन एम्पावरमेंट, कहाँ गई पावर विमेन की? विमेन जो कभी दुर्गा थी, जो कभी चंडी थी, जो कभी झांसी की रानी थी, जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया है ना. गुरु नानक ने दशमेश पिता गोदी विच भगत कबीर पढ़े. गुरु नानक साहब भी उसी औरत की गोद में पले जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दी. भगत कबीर भी उसी मां की गोद में पले. तो फिर भी उसी मां को, उसी औरत को, मां औरत का एक रूप है. एम्पावर करना है हमें. मतलब 21वीं शताब्दी के तीसरे डेकेड में आ गए हैं हम, और बीइंग मेल एक शर्म सी फील होती है कि क्यों हमारी विमेन अभी भी एम्पावर्ड नहीं है, कहाँ कमी है. तो रैपिड फायर में आप सब लोग अपने अपने विचार देंगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये चीज खत्म हो और हमें ये दिन मनाने ना पड़े हर रोज विमेन एम्पावर्ड हो. Thank you, sir. I'll answer only in one sentence. That is कि अगर हम अपने आप को चेंज कर लें, सोसाइटी अपने आप चेंज हो जाएगी. हम अपना नजरिया बदलें, अपने बच्चों को, अपने सन्स, अपने डॉटर्स, अपने रिलेटिव, जो भी, जिसको भी हम अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं, जिसको भी हम, जिसका भी नजरिया चेंज कर सकते हैं,
where we should always try to respect each other, to teach them. We respect each other. If we will start respecting, then automatically we will understand what they want, what are their emotions, what their feelings, if we respect someone. So this is, I think, the only thing we have to learn and teach to the society, to respect each other. Thank you. औरत को खुद को कमजोर नहीं सोचना, उसमें अपने अंदर ही बहुत शक्ति है, तो उसे किसी सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं, उसके अंदर बहुत पावर है। सबसे पहले ये सोच बदलनी होगी हर औरत को कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मुझे हर कदम पर एक मर्द के सहारे की जरूरत है। अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम अनमैरिड, मैंने शादी ही नहीं करवाई, आई एम इंडिपेंडेंट, जैसे सर कहते थे कि हम खुद ही इतना कमा लें कि हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं घर का काम खुद करती हूँ, मैंने मेड नहीं रखी, मैं घर की सफाई खुद करती हूँ और मैं अकेली रहती हूँ। द स्कूल हैज प्रोवाइडेड मी द अकोमोडेशन, मैं अकेली रहती हूँ, मैंने खुद को कभी कमजोर ही नहीं समझा। मैं सुनसान रास्तों पे खुद ड्राइव करती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को इतना एम्पावर्ड कर लिया है, मैंने अपने आप को कभी कमजोर ही नहीं समझा। मुझे बचपन से ही झांसी की रानी बोला जाता था कि ये झांसी की रानी है, क्योंकि मैंने अपना कभी हक ही नहीं छोड़ा और आज तक वैसे ही झांसी की रानी हूँ। वैसी एनर्जी है कि जहां खड़े कर दो, किसी से पीछे नहीं हटने वाली। तो यही हर औरत की सोच होनी चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्योंकि ये घर परिवार या सोसाइटी है जो सोच डाल देती है, घर से अकेले बाहर मत जाना, पता नहीं क्या कह देंगे, बस में पता नहीं कोई क्या कह देगा, ऐसा हो जाएगा, रात को नहीं जाना, वैसा मीन्स एक सोच दिमाग में डाल दी जाती है कि तुम कमजोर हो। नो, women are not weak, they are made। बना दिया गया है, सोच को कमजोर कर दिया गया है। तो सोच बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। थैंक यू। देखिए, मैं उनके साथ बहुत सहमत हूँ। जसबीर मैम जिन्होंने मुझे उनके थ्रू मुझे आपने इनवाइट किया, तो कल उनको मैंने बोला कि मुझे तो टेम्परेचर आया हुआ है, सुबह भी मैंने देखा 101, लेकिन मैंने कहा कि अब आज तो एम्पावरमेंट के फंक्शन में जाना है, तो अपने आप को एम्पावर तो करना ही पड़ेगा। और बचपन से ही मेरे फादर भी मुझे ये कहते थे, मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ और बड़ी हूँ सबसे, तो मेरे फादर ने, हम कहते हैं ना सोसाइटी, ठीक है घर से हमें संस्कार मिलते हैं, मेरे फादर कहते थे कि वो चाहे तीनों बेटियां बन जाती, इसको बेटा होना चाहिए था, हमारे पास रहती है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि तुम, क्योंकि मेरा नाम भी उन्होंने ऐसे लड़कों की तरह ही डाला हुआ था घर में जो निकनेम था। तो ये सही बात है कि हम लोग सोसाइटी में अपने पेरेंट्स हमें जो गाइड करेंगे तो हमारी सोच वैसे ही बन जाती है। तो इसलिए हमें ही खुद को अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए और अपने आप को सशक्त समझना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँ। धन्यवाद। सर, आपका क्वेश्चन था कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो आई थिंक दैट डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। व्हाई पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर रेड? टॉयज गर्ल्स के लिए जो आते हैं वो पिंक आते हैं, ड्रेसेस पिंक आती हैं, बॉयज के लिए रेड ब्लू आते हैं। अगर वही चीज़ है, बॉयज पिंक क्यों नहीं पहन सकते? तो गर्ल्स तो कैन वियर एनी कलर, नो प्रॉब्लम। तो बॉयज को पिंक कलर की शर्ट दे दो तो नहीं, पिंक इट्स ए गर्ल्स कलर, व्हाई? तो अगर ये सोच बदली जाए, जो जन्म से ही डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, अगर वो चेंज हो जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा बॉय गर्ल का। सेकेंडली, अगर बात करें विमेन की, तो हमें अपने लिए खुद ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि किसी लिए भी कोई नहीं बोलता आगे आगे, हमें अपने लिए खुद बोलना पड़ेगा। अपनी आवाज़ उठाओ, जो हमें सही लगता है वो करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। अगर हर कोई ऐसा ही सोचे तो आई थिंक देयर शुड बी चेंज इन द सोसाइटी। थैंक यू। What I feel is that we are teaching our daughters to become like a son, but we are not teaching
wanting a son to become like a daughter. So one, he has to step back and the daughter has to step forward. Like the child school से आता है तो the mother says पानी चाहिए तो लड़की को खुद उठाना पड़ता है और बेटे के लिए वो खुद लेकर आता है. So this we have to teach, balance बनना चाहिए. So for me that is. तो एक डायलॉग है सर, थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से डर लगता है. तो प्यार बांटो हर एक को, इधर योर सन और डॉटर. प्यार से हर चीज को हैंडल करो. ये नहीं लड़के को सिखाया लड़ना ही है, प्यार से उसको भी चेंज किया जा सकता है. हर एक को प्यार से डील करो, बेटा या बेटी. डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं करना चाहिए. मदर अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरीवेयर रोल जो है ना इस सोसाइटी को चेंज करने का वो एक मदर ही कर सकती है. फादर नहीं कर सकता. अगर वो कर सकते होते तो आज हमें ये प्रोग्राम ही ना करना पड़ता. तो अभी से इफ वी वांट टू ब्रिंग अ चेंज तो हमें मदर्स को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी अपने शोल्डर पे. बहुत कुछ है जो हम चेंज कर सकते हैं. अपने बच्चों में पहले नो डिस्क्रिमिनेशन, टेल देम, ट्रीट देम इक्वली. हर एक काम उनसे इक्वली करवाओ, सब कुछ. तो होगा ही नहीं आगे. सोसाइटी जो है वो चेंज ही हमारे से मदर से हो रही है. मैं कोई टीचर का रोल नहीं बोल रही हूँ, किसी का भी नहीं बोल रही हूँ. तो बस एक मदर चेंज हो जाए. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. Definitely, gender sensitivity is one issue which needs to be taken care of. आप में से कितनी पत्नियां ऐसी हैं जो जब घर जाती हैं काम से, अगर आपके पति घर में है तो आपको पानी का गिलास ऑफर करते हैं. लकी, ये चीज हमारी सोसाइटी की एक रियलिटी बननी चाहिए. जिस तरह से पति घर आता है और वो माइंड में लेके आता है कि मुझे जाते ही पहले पानी और फिर गर्मा गर्म चाय ऑफर की जाएगी, तो वैसे ही जिस दिन हमारे घरों में ये भी होने लग जाएगा कि अगर काम करने वाली वर्किंग वूमन घर जाती है तो घर के मेंबर उसको भी पानी का गिलास और चाय ऑफर करेंगे. वैसे नहीं कि जैसे मैडम ने कहा कि घर कौन से एप्रन पहना, जूते भी नहीं चेंज किए और किचन में घुस गए. घर पे अगर कोई मेंबर बैठा है तो इतना काम हो भी तो वो होगा मेरे ख्याल से एम्पावरमेंट. और ये चीज जेंडर सेंसिटिविटी से जुड़ी हुई है. हमें जो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर के बेस पे जो स्टीरियोटाइपिंग है, लड़कियां बैडमिंटन खेलेंगी, लड़के फुटबॉल खेलेंगे, स्कूल में प्रिंसिपल को डिक्लेयर कर देते हैं. लड़कियां भार उठाने वाला काम नहीं करेंगी और लड़के करेंगे. बॉक्सिंग और रेसलिंग जो है लड़कियां खेलेंगी. ये जेंडर स्टीरियोटाइप है. अब वक्त बदल गया है. अभी भारत को इंटरनेशनल लेवल पे जितने मेडल्स लड़कियां दिलवा रही हैं, लड़के उसमें करते हुए कुछ भी नहीं. इसी तरह अगर हम इकोनॉमी की बात करें, देश के बड़े बड़े बैंकों में, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस में जो सीईओ हैं वो लेडीज आ गई हैं. तो हमारे सामने बहुत एग्जांपल्स हैं. अब वो टाइम पीछे निकल गया कि औरत पर्दे में रहे, घर में रहे, चार दीवारी में रहे. आइए, जैसे इन सब एनालिस्ट ने हमें बताया है, हम अपने बच्चों से शुरुआत करें. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बंद करते हैं कि ये काम लड़कियों के हैं, लड़के नहीं करेंगे. ये शर्ट का बटन लगाना है, बेटी को तो सिखाया गया लेकिन बेटे को नहीं सिखाया गया. छोटे छोटे एग्जांपल, पिंक कलर और डॉग्स, है ना. ये सब चीजें पहले पेरेंट्स को टैकल करनी पड़ेगी, डील करनी पड़ेगी, क्योंकि घर से ही होती है समाज की शुरुआत. सोसाइटी क्या है? सोसाइटी घर का एक बड़ा रूप है, बड़ा घर है. सोसाइटी तो एक बड़ा घर है और सोसाइटी में वही कुछ होता है जो घरों में होता है. जिस तरह की सोच हमारी घर में है, हमारे बच्चे वही सोच लेके बाहर जाते हैं तो सोसाइटी की सोच बन जाती है. घर पे पता लगा पिता मां को मारता है, बाहर भी फिर लड़के की सोच वही बनती है. लड़की दिखती है, इसे मार सकते हैं, टीज कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं. लेकिन अगर घर में ग्रूमिंग उस तरह की होगी जैसी हम सोच रहे हैं, मुझे लगता है बाहर भी वही सोच, बच्चा बाहर वही सोच ले. लड़की भी इंडिपेंडेंट होगी, कंफर्टेबली जाएगी. अगर शाम को वो आधा घंटा लेट हो भी गई तो माँ बाप उस पर बरसेंगे नहीं. तेरे को अकल नहीं है, टाइम से घर आना चाहिए. कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हम खुद डाल रहे हैं और अभी भी ये चीजें चल रही हैं. लेकिन अगर इस तरह से एजुकेशनिस्ट हमें कोऑपरेट करेंगे और पेरेंट्स इस चीज को समझेंगे, और आज के इस मैसेज को, ये आपकी ड्यूटी है टीचर्स और पेरेंट्स, आप इस मैसेज को समाज में फैलाएंगे.
कि कैम्ब्रिज हाथन में ये डिस्कशन हुआ है, ये डिस्कशन एक फ्रूटफुल डिस्कशन है, महज ये खाना पूर्ति नहीं है। हमने कोई गवर्नमेंट को पेपर्स नहीं भेजने, मैंने किसी से कोई फंड नहीं लेना कि मैंने ये किया है वो किया है। मैं वाकई चाहता हूँ कि बेशक मेरे पास आज 60-70 लोग बैठे हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा एक कदम से हो। आज मेरे ये 70 लोग कल 700, परसों 7000, 7 लाख और 70 करोड़ तक पहुंचेंगे। सर मैं ये बोल रही थी कि खास करके लेडीज को मत बोले कि भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो बोले वो अपनी घरवाली को डरता घरवाली को डरता लेडीज ओनली दिस स्पीक शुडंट से कि कोई काम कर रहा है मतलब लेडीज शुड नॉट लेडीज ही लेडीज की दुश्मन अभी कौन बोल रहा था वैसे है ना मतलब ये नहीं होना चाहिए बोलना ही नहीं चाहिए बहुत प्यार से रहो ना उनको प्यार से ट्रीट करो सारा कुछ सब एक दूसरे के साथ एंड बी गुड ह्यूमन बीइंग दैट्स ऑल हमें कोई लेडी नहीं बनना है कोई मेल या फीमेल कुछ नहीं बनना वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बिकॉज ह्यूमैनिटी इज द नीड ऑफ एन आवर नाउ So with this we come to the fruitful end of this panel discussion. I hope जो भी discussion रहा वो आपके काम आएगा. Thank you so much.